Good morning, students. In the previous part of this lesson, you read about Wanda Petronsky, the little girls, quite shy girls, in the lesson of the 100 dresses. She was a very good artist and she was made fun of by her friends and classmates, especially Peggy and Maddie, her classmate, and later she realized that it was their fault. Maddie requested Peggy not to make fun of her constantly, but later part of her life she realized that it was a really fault of her. So she felt, and there was a drawing competition held in her school in which Wanda Petronsky got first position. Only then she realized that the girls was not only quiet and shy but also a girls of a good virtue, a good merit. So let's see the rest part of this 100 dresses part 1. Today, even though they had been late to school, Maddie was glad that she had not had to make fun of Wanda. यद्यपि आज वो दोनों वांडा का मजाक बनाने के लिए वेट कर रही थी, लेकिन वो लेट हुई और खुशी थी मैडी को, मैडी और पैगी उसके ऊपर से both the girls made fun of Wanda and she waited for her. कहता कि वो मैडी कहती है कि इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल के लिए लेट हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, आज उन्होंने वांडा के ऊपर कोई मजाक नहीं किया, वो इस बात से खुश थी. शी वॉज हैप्पी. शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स absent-mindedly. She regretted over the situation. They consecutively made fun of her, and Maddie felt that because she too was poor, and she thought that if Wanda was left, the next target would be she. So she felt that she repented over the whole situation, and she thought that it should not be happened. And so let's see what happens next. She worked her arithmetic problems के ऊपर उसने मेहनत की. Absent minded से she was thinking somebody else, and she was at the same time simultaneously she was solving the problem of arithmetics. 8 times 8, let's see. She wished she had the nerve to write Peggy a note, because she knew she never would have the courage to speak right out to Peggy to say. वो चाहती थी कि काश मेरे अंदर इतनी ब्रेवनेस होती मैं नर्व होती कि मैं उसको एक नोट लिखती. मैडी ने सोचा कि मैं पैगी को एक नोट लिखती. काश मैं इतनी ब्रेव होती, क्योंकि वो जानते थे कि सी नेवर वुड हैव करेज टू स्पीक. उसको कह तो सकते नहीं कि लिखने का भी कम से कम साहस, वैसी इच्छा व्यक्त करते थे. और वो लिखती कि हे पैगी को पैग उन्होंने शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया. लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज़. चलो ये बंद करें ये बकवास कि वो ड्रेस वाला मामला वांडा के साथ जम करते हैं. मेकिंग फन ऑफ शुड वी मस्ट स्टॉप इट, इट्स इमोरल. When she finished her arithmetics, she did start a note to Peggy. जब उसने अर्थमेटिक का काम पूरा किया तो एक नोट स्टार्ट किया पैगी को. Suddenly she paused and shuddered. वो रुकी, अचानक कांपने लगी. She pictured herself in the schoolyard, a new target for Peggy and the girls. उसने एक पिक्चर ली अपने आप की कि वो नेक्स्ट टारगेट कहीं वो ना हो जाए बच्चों की. Peggy might ask her where she got the dress that she had on. Peggy उससे पूछ सकती है कि ये जो ड्रेस आपने पहना हुआ है ये कहाँ से आया. Maddie would have to say it was one of
Peggy's old one that Maddie's mother had tried to disguise with the new trimmings so no one in room 13 would recognize it. कि फिर मैडी को कहना पड़े कि पैगी तो तुम्हारा पुराना दिया हुआ है, जो मेरी मम्मी ने ट्रिमिंग्स होते हैं उसको थोड़ा सा एक अलग शेप देके, एक कपड़े के ऊपर एक अलग डिफरेंट क्लोथ्स यूज़ कर देना ताकि वो चेंज हो जाए, उसका जो आउटफिट है, लुक वो लगा के ट्रिमिंग लगा, इसलिए कि ताकि रूम नंबर 13 के बच्चे को रिकग्नाइज ना कर सके। मैडी की मम्मी ऐसा कर देती, थोड़ा सा चेंज, अमेंडमेंट इन द ड्रेस। इफ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विद वंडा। ओह वेल, काश पैगी खुद अपनी सोच के अनुसार इस जो मेकिंग फन ऑफ वंडा, इस प्रोसेस को वो खुद ही, भगवान करे खुद फील करे, अपने दिमाग से छोड़े तो ये अच्छा है। मैडी ने ऐसा सोचा। मैडी ran her hands through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thoughts away। अपने बालों को ऐसे फेरते हुए बालों में कि काश इन अनकंफर्टेबल जो थॉट्स कहते हैं ये, इससे उसको छुटकारा मिल जाए। What difference did it make? फिर उसने सोचा क्या फ़र्क पड़ता है। Slowly Mary tore it into bits, the notes she had started। जो उसने लिखना शुरू किया था उसको फाड़ दिया। Cowardice थी, she was fearful। She didn't have enough courage to say to Peggy, her friend, that we should not make fun of Wanda, and she didn't have enough courage to write, even to say, and she thought it and press her hands into her hair to get out of these problems. She was Peggy's best friend. Maddie was Peggy's best friend, and Peggy was the best liked girl in the whole room। एक तो पैगी की वो बेस्ट फ्रेंड, दूसरा उस पूरी क्लास में वो फेमस गर्ल्स थी पैगी। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग, सी थॉट। उसने सोचा कि पैगी विलफुली कोई गलत काम नहीं कर सकती। ऐसा सोच के अपने मन को समझा के उसने पटाक्षेप कर दिया इस विषय का। एज फॉर वांडा, और जहाँ तक वांडा का संबंध है, सी वॉज जस्ट वन गर्ल्स हु लिव्ड अप ऑन बोगन साइट एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड। अकेली लड़की थी जो बोगन साइट एक प्लेस है, स्लम लाइक बस्ती होती है, स्लम जो साफ सुथरी नहीं होती, डर्टी होती, उससे एक अकेली लड़की थी जो आती थी और वो स्कूल के आंगन में अकेली खड़ी होती थी। सी स्कार्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी। मुश्किल से किसी को एक भी शब्द वो कहती। क्वाइट गर्ल्स थे वो। सी द ओनली टाइम सी टॉक्ड वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस। एक ही बात कहती थी वो, जो बोलती थी कि 100 ड्रेसेस के बारे में। रेस्ट ऑफ थिंग्स सी सेड नथिंग। Maddie remembered her telling about one of her dresses, pale blue। अब मैडी को याद है पेल ब्लू, पीले ब्लू कलर की ड्रेस थी विद कलर ट्रिमिंग, जिसका जो नीचे का हिस्सा था वो कलर्ड था। एंड शी रिमेंबर्ड अनदर ड्रेस ब्रिलियंट जिंगल ग्रीन विद रेड शश। एक ग्रीन कलर की ड्रेस और थी अच्छी सी, उसको भी वो मैडी याद करती है, जो वेंडा के पास थी। रेड शश थे जिसके लाल रंग की ट्रिमिंग्स थी। यू वुड लुक लाइक ए क्रिसमस ट्री इन दैट। अब उन्होंने कहा तुम क्रिसमस ट्री के जैसे देखोगे। द गर्ल्स हैड सेड इन ए प्रिटेंडेड एडमायरेशन। अब लड़कियों ने उसको एडमायर किया प्रिटेंशन वाले मोड में, दिखावा। एक्चुअली दे वर नॉट हैप्पी टू से दिस, बट दे वांटेड टू मेक फन ऑफ वांडा। And they said that you would look like a Christmas tree in this dress, and pretended admiration था, खाली दिखावा था, प्रशंसा नहीं थी। Thinking about Wanda and her 100 dresses all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. For girls, this contest consisted of designing dress, and for the boys of designing motorboats। उनके स्कूल में अब एक कंपटीशन होना था। पैगी, मैडी, पेंडा के स्कूल में, फ्रॉम द सेम स्कूल दे बिलोंग टू।
थिंकिंग अबाउट वंडर्स एंड हर 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन क्लोज, मैडी ने सोचना शुरू किया उसकी ड्रेसेस के बारे में और बिगेन टू वंडर, हैरान होने लगे कि हु वाज गोइंग टू विन, अब जीतने कौन जा रहा है मैच को, कंपटीशन को। जो ड्राइंग कंपटीशन होना था गर्ल्स के बीच में, और कलरिंग डिजाइनिंग मोटर बोट्स अमंग द बॉयज। प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स, अब कहा उसने सोचा मन में कि पैगी जीतेगी, पैगी वुड विन द मेडल, गर्ल्स मेडल, कि पैगी जीतेगी। क्यों, उससे क्या क्यों था ऐसा थॉट्स? बिकॉज पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, उस रूम में किसी भी बच्चे से अच्छा वो ड्रॉ करते थे। कौन? पैगी। एट लास्ट दैट्स व्हाट एवरीबडी थॉट, ऐसा सभी ने सोचा। शी कुड कॉपी ए पिक्चर इन मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हैड सो दैट दे कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉज। Oh, Maddie was sure Peggy would win. Well, tomorrow the teacher was going to announce the winners. Then they would know. अब उन्होंने ये सोचा सभी ने कि पैगी जीतेगी। पैगी मैगजीन में किसी भी पिक्चर को देखे जो ड्रॉ करते थे और उसको कोई भी देखने वाला पहचान जाए कि ये सो एंड सो पर्सन है या आर्टिस्ट है, एक्टर है, इतना ब्यूटीफुली वो स्केचेस करते थे, ड्रॉ करते थे पैगी। तो उनको होप थे कि ये पैगी वुड विन द कंटेस्ट। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग, अगले दिन ड्रिजलिंग, हल्की बारिश, बूंदाबांदी। मैडी एंड पैगी हरीड टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला। Naturally on a day like this they didn't wait for the vendor patrons on the corner of Oliver Street, the street that far away under the railroad track and up to the hill led to the Boggins site. अब जो जगह थी उसको वो वेट करते थे ओलिवर स्ट्रीट पे, दोनों पैगी और मैडी साथ जाते। लेकिन उस दिन ड्रिजलिंग थी, मौसम ख़राब था, तो वो दोनों पहले ही निकल ली। फन का उन्होंने सोचा नहीं कि वेदर वाज नॉट गुड सो वी शुड नॉट वेट फॉर वेंडा, तो वो पहले ही निकल गए वहाँ से। वो बोगिन साइड से आती तो उस रास्ते पे वो उसको वेट करते। एनीवे दे वर नॉट टेकिंग चांस ऑफ बीइंग लेट टुडे, अब वो चांस नहीं ले सकते थे आज लेट होने का, बिकॉज टुडे वॉज इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ड्राइंग कॉम्पिटिशन वॉज टू बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन दैट डे एंड दे वर द कंटेस्टेंट, स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट रादर, दे थॉट देमसेल्फ विनर। डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे? आज पैगी ने कहा कि आपको पता आज ये जो मिस मैसन अनाउंस करेंगी विनर्स का नाम? ओह आई होप सो द मिनट वी गेट इन, जो ही हम अंदर जाएंगे ऐसे, सैड मैडी ने भी कहा। ऑफ कोर्स यू विल विन पैग, तुम ही जीतोगे पैगी। होप सो सैड पैगी इगरली, और पैगी ने भी उत्सुकता यानी आशा के साथ होपफुली कहा यस I should win. The minute they entered the classroom, they stopped short and gasped. जो ही वो घुसे, रुके और एक लंबा सा सांस लिया। There were drawing all over the room, on every lace, window sill, drizzling colors, brilliant lavish design. जो ही घुसे रूम में एंट्री की, उन्होंने देखा डिजाइनिंग, ड्राइंग, किनारे पे, बीच में, खिड़की में, ऑल लाइन अप और ब्यूटीफुली डेजलिंग, भड़काऊ सा कलर, मतलब गुड लुकिंग, और सारी लाइन अप। दीज मस्ट बी द ड्राइंग ऑफ फॉर द कॉन्टेस्ट, और ये उससे ही जो कॉन्टेस्ट कॉम्पिटिशन का ही हिस्सा है ये। दे वर एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विशल और मर्मर्ड एडमायरिंगली, सभी ने कानाफूसे से बात की कि ये किसके हैं, हुज ड्राइंग और दीज, एंड उन्होंने टॉक किया, एडमायर भी किया। As soon as the class had assembled, जो ही क्लास असेंबल्ड हुई, इकट्ठे हुए बच्चे, मिस मैसन अनाउंस द विनर, मिस मैसन उनके टीचर्स थी, अनाउंस किया नाम विनर्स का, विजेता कौन था, विक्ट्री किसके साइड गई थी। जैक बेगल्स हैड वन फॉर द बॉयज़, अभी जैक बेगल्स नाम है लड़के का, इन्होंने बॉयज़ का कंपटीशन जीता। सी सेड,
मिस मैसन ने कहा, एंड हिज डिजाइनिंग फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वॉज ऑन द एग्जीबिशन इन रूम 12 नंबर रूम में एग्जीबिशन के लिए इसका जो मोटर बोट का डिज़ाइन है वो वहाँ पे एग्जिबिट है, रखा हुआ है, डेमोन्स्ट्रेटेड है। अलॉन्ग विद द स्केचेस बाई ऑल अदर बॉयज़, बाकी बच्चों के स्केचेस हैं उनके साथ ये भी है जैक बेगल्स का, जो कि विनर था बॉयज़ का। एज फॉर द गर्ल्स, और जहाँ तक लड़कियों का संबंध था, सी सेड, उसने कहा, ऑल्दो जस्ट 1 or 2 sketches वर सबमिटेड बाई मोस्ट, one girls and room 13 should be proud of her. This one girls actually drew 100 design, all different, all beautiful. In the opinion of the judges, any of the drawing is worthy of winning the prize. I am very happy to say that Wanda Petronsky is the winner of the girls medal. अब मिस मेसन ने कहा कि सभी ने एक 2 स्केचेस बनाए। एक लड़की है जिसने 100 स्केचेस बनाए और सभी ईच वन ऑफ देम वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइजेस, कि हर इनाम, हर जो स्केचेस है वो इनाम की हकदार है और वो और कोई नहीं, वंडा पेट्रोंस्की है, लड़कियों का मेडल उसको जाता है। अनफॉर्चुनेटली वंडा हैज़ बीन absent from the school for some days and is not here to receive the applause that is due to her. Let's hope she will be back tomorrow. Now class, you may file around the room quietly and look at her exquisite drawing. अब जो मिस मेसन ने कहा कि दुर्भाग्य से जो लड़की है वंडा पेट्रोंस्की वो अपसेंट है, विनर होने के बावजूद भी दुर्भाग्य से वो अपसेंट है और वो इस ऑनर को, इस सम्मान को लेने के लिए आज अपसेंट है, वो स्कूल में नहीं है उपस्थित और उम्मीद करे कि वो कल आ जाएगी। और अब क्लास लाइन बना के आप जाओ और उसकी जो एक्विजिट ड्राइंग है उसको आप देखो, अति सुंदर जो ड्राइंग है आप उसको देख सकते हैं। The children burst into applause and even the boys were glad to have the chance to stamp on the floor, put their fingers in their mouth and whistle, though they were not interested in the dresses. अब लड़के पहले निकले, उनको पहले बाहर निकलने का अवसर मिला, बड़ी खुशी से उन्होंने चिल्लाए, खूब सीटियाँ मारी, हालांकि वो लोग ड्राइंग या ड्रेसेस में इंटरेस्टेड नहीं थे। लुक पैग विस्पर्ड, मैडी ने अब पैगे को कहा, There's that blue one she told us about. वो देखो ब्लू वन जो वेंडा ने हमें जिसके बारे में जिक्र किया था, वो देखो वहाँ पे। Isn't it beautiful? क्या ये सुंदर नहीं है? मैडी ने पैगी से पूछा। Yes, said पैगी। पैगी ने अब अनविलिंगली कहा कि हाँ। And here's that green one. और देखो ये ग्रीन वन। Boy and I thought I could do. अब कहा मैं भी, अब पैगी ने ऐसा कहा कि मैंने सोचा था कि मैं इन्हें ड्रॉ कर सकती हूँ। स्टूडेंट, आई होप यू एंजॉयड दिस लेसन वेरी वेल एंड वी शुड नॉट जज ए पर्सन, वी शुड नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर. सो दिस इज व्हाट the author want to say. We should not judge a person by one's look. We should see the merit, virtues of a person. Wanda Petronsky had single dress to wear and she would wear the same dresses every day to school. And the girls of her school and class made fun of her. It was a moral part of her nature. So we should not judge a person, a student, by the look somebody has. We should see the characteristics of person and we should respect such people. We should not laugh at the poor on the basis of money, wealth. We should not prefer such person. We should prefer the goodness, the gentleness, the generosity of a person, the quality, the truthfulness. So the author want to convey the message. Hope you enjoyed well, and you will try to learn from this lesson that we should also respect whom we think inferior. We should not
think anybody is inferior. Everybody has its own value, own characteristics. So we should not look down upon the people who are poor, who don't have money, who don't have good dresses. So hope you will not do such things in your life, student. May God bless you. Have a great day.